السلام علیکم۔ رائل تیز کے ساتھ میں ہوں سعیدہ دیبا حسین۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا، اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور حکومت عوام کو ریلیف دینے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے عبدال عباسی۔ جی عبدال، آگاہ کیجیے گا تفصیلات کے بارے میں۔ جی بالکل، مہنگائی کا جن بوتل سے باہر ہو گیا اور موجودہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ آئے روز اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ کیا جانے لگا، جس پر غریب عوام کے چولہے ٹھنڈے ہو کر رہ گئے۔ جولائی 2020 میں مہنگائی کی شرح 9.3% تھی اور جون 2021 میں یہ شرح 9.7% رہی، جبکہ جولائی 2021 میں مہنگائی کی شرح 8.40% رہی۔ جولائی میں شہروں میں ٹماٹر 82.4% مہنگے ہوئے اور جولائی میں ماہانہ بنیادوں پر پیاز 32.5% مہنگا ہوا، جبکہ گھی 6.7 اور کوکنگ آئل 6.5% مہنگا ہوا۔ جولائی میں سالانہ بنیادوں پر گھی 32.85% مہنگا ہوا، کوکنگ آئل 31.7% مہنگا ہوا اور جولائی 2020 کے مقابلے میں انڈے 24% مہنگے ہوئے، جبکہ اسی عرصے میں چینی 23% مہنگی ہوئی۔ ایک سال میں مسالہ جات 16.7% مہنگے ہوئے اور جولائی 2020 کے مقابلے میں آٹا 14.9% مہنگا ہوا، جبکہ ایک سال میں دودھ، گوشت اور مکھن 13% سے زائد مہنگے ہوئے۔ اس کے علاوہ جولائی میں سالانہ بنیادوں پر بجلی چارجز 21.72% بڑھ گئے۔ کیمرامین راجہ جاز کے ساتھ عبدال عباسی، رائل نیوز، اسلام آباد۔ ترجمان وزارت خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے وزیر خارجہ کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر خارجہ سے ایک ایسا بیان منسوب کیا جا رہا ہے جو انہوں نے نہیں دیا۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں اسلام آباد سے سردار عامر حسین عالمگیر۔ آج دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے وزیر خارجہ سے منسوب کیے جانے والے بیانات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ داعش اور طالبان کے بارے میں سوشل میڈیا پر زیر گردش وزیر خارجہ سے منسوب بیانات گمراہ کن اور افسوسناک ہیں۔ وزیر خارجہ سے وہ باتیں منسوب کی گئی ہیں جو انہوں نے نہیں کی۔ وزیر خارجہ نے اخوانوں کی قیادت میں اخوانوں کو قبول امن عمل کی بات کی تھی۔ وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف عالمی برادری، علاقائی فریقین اور اخوانوں کو اتفاق رائے کی واضح بات کی تھی۔ پاکستان نے بارہا کہا ہے کہ افغانستان میں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں۔ ہم اخوان تنازع کے تمام فریقین کو مد نظر رکھتے ہیں جنہوں نے اپنے مستقبل کا از خود فیصلہ کرنا ہے۔ پاکستان اخوان عمل میں سہولت کاری کا اپنا تعمیراتی کردار جاری رکھے گا۔ اجتماعیت کے حامل وسیع البنیاد اور جامع سیاسی تصفیہ کے لیے تمام توانائیاں بروئے کار لانے پر توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ ڈاکٹرز غریب اور دکھی انسانیت کے علاج کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لائیں۔ بیماریوں سے پیشگی بچاؤ کی حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا تحقیق پر مبنی علاج اپناؤ کی تقریب سے خطاب۔ اس بارے میں مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں اسلام آباد سے شہزاد حسن مرزا اپنی اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ہمدردی اور تحقیق و شواہد پر مبنی طب پر مبنی علاج پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹرز غریب اور دکھی انسانیت کے علاج کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لائیں۔ بیماریوں سے پیشگی بچاؤ کی حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ حکومت نے کورونا وبا کے مقابلے سمیت ملکی معیشت کو سنبھالا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کورونا وبا کے دوران اقدام میں غریبوں کا خاص خیال رکھا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے زیر اہتمام تحقیق پر مبنی علاج اپناؤ کے موضوع پر دوسری سالانہ کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا شواہد پر مبنی طب کے ذریعے مریضوں کا علاج کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں کورونا SOPs پر عمل درآمد اور ویکسینیشن پر ہچکچاہٹ ظاہر کی جاتی ہے۔ اس تناظر میں مختلف ممالک میں مظاہرے کیے گئے۔ انہوں نے کہا حکومت نے کورونا وبا کے دوران غریب طبقے کا خاص خیال رکھا۔ انہوں نے کہا ہم نے 2000 میں 8 لاکھ افراد میں دانتوں کی صفائی سے متعلق آگاہی پیدا کی۔ کورونا وبا کے دوران NCOC نے مؤثر کردار ادا کیا۔ NCOC نے تحقیق پر مبنی منصوبہ بندی کی اور سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا۔ کورونا وبا کے دوران معیشت نہ صرف مستحکم رہی بلکہ ترقی کی راہ پر بھی گامزن ہوئی۔ کورونا کے باوجود چھوٹے بڑے کاروبار نے ترقی کی۔ انہوں نے کہا ملک میں کورونا ویکسینیشن پر تحقیق قابل تعریف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک سے ہیپاٹائٹس کے خاتمے کے لیے اس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ امیر آدمی کو بیماریوں اور صحت سے متعلق سہولیات اور رہنمائی آسانی سے مل جاتی ہے۔
तहम गरीबों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी इलाज पर खर्च हो जाती है। डॉक्टर्स को गरीब आदमी की सेहत की सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना होगा और इसे हमदर्दी से सोचना होगा। शहजाद हसन मिर्जा, रॉयल न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के तमाम मुस्लिम ममालिक और बिलखसूस अरब ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात मिसाली हैं। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने अरब पार्लियामेंट के सदर आदिल बिन अब्दुर्रहमान अल सौमी की सरबराही में पाकिस्तान का 5 रोज़ा दौरा करने वाले वफ्द से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की। इस बारे में मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रही हैं इस्लामाबाद से शहजाद हसन मिर्जा अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के तमाम मुस्लिम ममालिक और बिलखसूस अरब ममालिक के साथ बरादराना तल्लुकात मसाली हैं और पाकिस्तान के लिए अरब पार्लियामेंट अरब ममालिक का मुश्तरका प्लेटफार्म होने के बायस नहायत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान अरब पार्लियामेंट में बतौर ऑब्जर्वर की हैसियत से शमूलियत के लिए तैयार है। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने अरब पार्लियामेंट के सदर आदिल बिन अब्दुर्रहमान अल असूमी की सरबराही में पाकिस्तान का 5 रोज़ा दौरा करने वाले वफ्द से पार्लियामेंट हाउस में इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान किया। मोहम्मद सादिक संजरानी ने कहा कि पाकिस्तान अरब ममालिक के साथ दो तरफा तावन और तल्लुकात को नहायत अहमियत देता है। अरब पार्लियामेंट का मजमूई किरदार काबिल तहसीन है। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अरब ममालिक के साथ तल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और खित्ते की राब्ताकारी को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान अरब दुनिया के साथ राब्ताकारी के इक़दामात और मनसूबों को अहम समझता है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी राब्ताकारी, शराकत दारी, तरक्की और समाजी और इक़्तिसादी खुशहाली और अमन के पैगाम पर मुनहसर है। अरब पार्लियामेंट के वफ्द से मुलाकात के दौरान चेयरमैन सेनेट ने मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर के हवाले से तफसीली गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और फ़लस्तीन के जायज़ हकूक़ की हमायत हमेशा जारी रखेंगे। मोहम्मद सादिक संजरानी ने कहा कि पाकिस्तान मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ है और किसी भी सूरत में इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर के मसला का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होगा। अरब पार्लियामेंट के सदर आदिल बिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि पाकिस्तान का दौरा करके बहुत खुशी महसूस हुई और पाकिस्तान अरब ममालिक के लिए इंतहाई अहम मुल्क है। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी तरक्की और समाजी खुशहाली हमारा मुश्तरका अज़म है और इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। आदिल बिन अब्दुर्रहमान ने चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी को अरब पार्लियामेंट के इजलास में खसूसी शिरकत और खिताब करने की दावत दी। बाद अज़ां अरब पार्लियामेंट के वफ़द ने सेनेट म्यूजियम का दौरा किया और बाहमी समझौते की याददाश्त पर दस्तखत भी किए। अरब पार्लियामेंट के सदर ने मेहमानों की किताब में अपने तसव्वुरात भी कलमबंद किए। चेयरमैन सादिक संजरानी से अरब पार्लियामेंट के सदर की वफ़द की मुलाकात के दौरान सेनेटर सनाउल्लाह जमाली, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, नुज़रत सादिक, हाफिज अब्दुल करीम, फलक नाज, प्रिंस अहमद और उमर अहमद ज़ई और आबद मोहम्मद अजीम भी मौजूद थे। रावलपिंडी से आपको अपडेट करेंगे, जहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जालसाजी और मिलावट माफिया के खिलाफ रावलपिंडी में कार्रवाइयां जारी हैं। डेयरी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और किराना स्टोर्स की चेकिंग। इस हवाले से मजीद देखते हैं रावलपिंडी से अपने नुमाइंदे महमूद खान की इस रिपोर्ट में। जी, रावलपिंडी पंजाब फूड अथॉरिटी मुआयने के दौरान ज़ायद अलमियाद मसालाजात और स्नैक्स की भारी मकदार तलब की गई। फूड सेफ्टी टीमों ने राजा बाजार, रावल टाउन, टेक्सला, पठवा टाउन, क्वाटी बाजार और मंदरा बाजार में छापे मारे। प्रोडक्शन एरिया में चूहों की मौजूदगी पर बूम हॉट एंड स्पाइसी रेस्टोरेंट को 30,000 रुपये जुर्माना ऐद किया गया। नाकिद स्टोरेज और गैर मेयारी इजरा के इस्तेमाल पर 7 फास्ट फूड पॉइंट के खिलाफ कार्रवाई की गई। मिलावटी दूध की स्टोरेज और फरोख्त पर 2 डेयरी शॉप्स को जुर्माने किए गए। मुदर सैद, रंगों और केमिकल्स के इस्तेमाल पर मारूफ बेकरी को भी भारी जुर्माना। मामूली निकास पर 62 फूड पॉइंट को वार्निंग नोटिस जारी किए गए। सेहत बख्श खुराक की फरहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। इस्लामाबाद के इलाके पंडोरिया में लेबर कौंसलर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहसानुल हक सत्ती पर शरपसंदों का हमला। तहरीक इंसाफ पब्लिक सेक्रेटेरिएट पंडोरिया का मुहासरा और शीशे तोड़ दिए। इस्लामाबाद से देखते हैं अपने नुमाइंदे महमूद खान की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के संगम में वाक़या पंडोरिया का इलाका मैदान जंग बन गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पब्लिक सेक्रेटेरिएट पर हमला। लेबर कौंसलर एहसानुल हक सत्ती का ज़दोकोब किया गया और इन पर तशद्दुद किया गया। इस्लामाबाद के इलाके में असले का बेदरेग इस्तेमाल और डंडों से हमला आवर ने दफ्तर के शीशे तोड़ दिए। इस मौके पर एहसानुल हक सत्ती ने बताया कि मैं जुमे की तैयारी करके घर से निकला तो इब्रार नामी शख्स ने मुझे फ़ोन किया जो हमारे मलेदार है और बताया कि गाड़ी जो रेंट पर ली थी वापस करने आया हूँ। इस
اس پر میں نے اسے اپنے دفتر واقع مین کوری روڈ بیٹھنے کا بولا اور کچھ دیر بعد خود بھی وہاں پہنچ گیا، لیکن وہاں پہنچنے پر وہاں موجود پہلے سے منصوبہ بندی کے تحت ہمارے دفتر پر حملہ کیا گیا، ہمارے دفتر کے شیشے توڑے گئے اور مجھے زدوکوب کیا گیا اور اسلحے کے زور پر تشدد کیا گیا اور ہمارے لیپ ٹاپ اور تمام ریکارڈ بھی شرپسند ساتھ لے گئے۔ تمام حملہ کرنے والوں کے نام میں نے اپنے ویڈیو بیان میں بتا دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام تر ثبوت ویڈیو میں موجود ہیں۔ احسان اللہ ستی نے وزیر اعظم عمران خان اور IG اسلام آباد قاضی جمیل الرحمان صاحب سے اپیل کی ہے کہ ملزموں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے اور ان کو جلد گرفتار کیا جائے اور مجھے انصاف دیا جائے۔ سخا کوٹ سے ساجد حسین مشوانی کی رپورٹ کے مطابق ممبر صوبائی اسمبلی اور چیئرمین ڈیڈک کمیٹی پیر مصور خان غازی نے سخا کوٹ میں رائل موٹرز اینڈ پراپرٹی ڈیلر بارگین سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر سخا کوٹ کے ممتاز سماجی اور سیاسی شخصیت اعظم خان، سابق ڈسٹرکٹ ممبر پیر ظاہر شاہ بھی موجود تھے۔ افتتاح کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ممبر صوبائی اسمبلی پیر مصور خان غازی، اعظم خان، سمیع اللہ، احسان شاہ اور دیگر نے کہا کہ جہاں پر روزگار کے مواقع موجود ہوں تو وہاں پر امن و امان کی صورتحال بہتر اور ترقی کا پہیہ چلتا ہے، کیونکہ روزگار ہی کسی علاقے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جس علاقے میں روزگار کے مواقع کم ہوں، اس علاقے میں امن و امان کی صورتحال پر کافی اثر پڑتا ہے، کیونکہ بے روزگاری کی وجہ سے جرائم کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسب حال عین عبادت ہے اور سخا کوٹ میں روزگار کے بہت سے مواقع موجود ہیں، ہم سب کو اس فائدہ سے اٹھانا چاہیے۔ بچگی میں ہمارے رائلٹیز کے نمائندے محمد نواز کی رپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان کے احکامات کے مطابق کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت شجرکاری کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ڈپٹی کمشنر ننکانہ مصور احمد خان نیازی اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ننکانہ بلال افتخار نے کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت DC پارک میں پودے لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا اور ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ننکانہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان کے ویژن کے مطابق صاف، سرسبز اور محفوظ پاکستان مہم کے تحت ضلع بھر میں 1,00,000 پودے لگائے جائیں گے۔ اس سلسلہ میں ضلعی انتظامیہ تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مشترکہ تعاون کو یقینی بنائے گی۔ ماحول کو صاف اور خوشگوار بنانے کے لیے پودے لگانا انتہائی ضروری ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بلال افتخار کا کہنا تھا کہ ضلعی پولیس تھانہ جات، پولیس دفاتر اور پولیس لائن میں شجرکاری کو فروغ دے رہی ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کے ویژن کے مطابق ضلعی پولیس کلین اینڈ گرین پاکستان مہم پر دل و جان سے ورک کرے گی۔ شجاع آباد سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، جہاں پر محرم الحرام کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر ناصر شہزاد ڈوگر نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی شجاع آباد اور لائف سائنس داران کے ساتھ دفتر میونسپل کمیٹی میں میٹنگ کی، جس میں اسسٹنٹ کمشنر نے محرم الحرام کے دوران اسلامی بھائی چارے اور امن کی فضا کو قائم رکھنے پر زور دیا اور کہا کہ ماہ مقدس میں تمام مسالک ہم آہنگی کو فروغ دیں اور کرونا وبا پوری طرح ختم نہیں ہوئی، لہٰذا حکومتی SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ محرم روٹس پر تعمیراتی کام میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، کام کے معیار اور مقدار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ محرم روٹس پر کیے جانے والے ترقیاتی کام اختتام متعلقہ لائسنس داران تکمیلی سرٹیفکیٹ دیا جائے گا اور وہ کام کے معیار سے مطمئن ہے اور اس کے بعد ادائیگی کی جائے گی۔ محرم الحرام کے حوالے سے پلان مرتب کر دیا گیا ہے اور تمام روٹس پر صفائی کے انتظامات کے علاوہ ہر قسم کی تجاوزات کو ختم کرا دی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تمام روٹس پر روشنی کی خاطر خواہ انتظامات کرائے جائیں گے اور تعمیراتی کام بھی جلد شروع ہو جائے گا۔ امن و امان کے حوالے سے بتایا کہ محکمہ پولیس کی جانب سے فول پروف انتظامات کو حتمی شکل دے دی جا چکی ہے اور محرم الحرام کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس 24 گھنٹے چوکس رہے گی، جس پر تمام امن کمیٹی کے ممبران نے لائسنس داران نے اطمینان کا اظہار کیا۔ بچگی میں ہمارے رائلٹیز کے نمائندے محمد نواز کی رپورٹ کے مطابق بچگی میں دن دہاڑے خواتین نے جیولر شاپ سے لاکھوں روپے مالیت کا زیور چرا لیا۔ واقعہ کی CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 خواتین دکاندار کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بلا خوف و خطر شوکت علی زرگر کی دکان میں داخل ہوتی ہیں۔ ایک خاتون لوگوں کی آمد و رفت کا جائزہ لینے کے لیے
دکان کے دروازے میں کھڑی ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری خاتون تسلی کے ساتھ دکان کی الماری میں رکھا گیا لاکھوں روپے مالیت کا زیور چرا لیتی ہے۔ واردات کے بعد دونوں خواتین بآسانی دکان سے نکل کر ایک دوسرے کی مخالف سمت میں چلی جاتی ہیں۔ شہریوں نے واردات میں ملوث افراد کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ سرائے مغل میں طالب حسن نقوی کے دست مبارک سے PCC کا افتتاح کیا گیا۔ سردار طالب حسن نقوی کی آمد پر پریس کلب کے تمام ممبران اور علاقہ بھر کے معززین کی کثیر تعداد موجود تھی، جنہوں نے اپنے مہمان اور ہر دل عزیز شخصیت کا پرتپاک استقبال کیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور ہار پہنائے گئے۔ اس موقع پر چیئرمین حاجی رانا انتظار اسلام نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سرائے مغل میں اس واحد پریس کلب کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کے تمام صحافی نہ صرف مخلص ہیں بلکہ انہیں اپنی قیادت پر بھرپور اعتماد ہے اور سب مل کر اپنے اپنے فرائض بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سردار طالب حسن نقوی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کرنے پر نہ صرف خوشی کا اظہار کیا بلکہ پریس کلب ممبران کا شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پریس کلب سمیت پورے حلقہ میں PCC کا جال بچھا دیا گیا ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ PTI عوام کی منتخب کردہ جماعت ہے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں تحصیل مریدکے کے گاؤں کٹھیالہ ورکا میں، جہاں دو رحمانی گروپس کے درمیان پیر سید امتیاز شاہ نے صلح کروا کے گاؤں کو بڑے حادثے سے بچا لیا۔ اس موقع پر پیر امتیاز کا کہنا تھا کہ میں اپنے گاؤں کی کسی رہائشی کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ تفصیلات کے مطابق 2 دن پہلے گاؤں کٹھیالہ ورکا میں شہباز رحمانی اور سعید رحمانی گروپ کے درمیان سخت لڑائی ہوئی، جس میں دونوں جانب سے لوگ زخمی ہوئے۔ اس لڑائی کی آگ میں اضافے سے پہلے ہی UC 18 کٹھیالہ ورکا سے چیئرمین کے امیدوار پیر سید امتیاز نے سابقہ روایت جاری رکھتے ہوئے دونوں گروپس کی صلح کروا دی۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے ہمارے نمائندے عامر رفیق سلطانی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے ویژن گرین اینڈ کلین پاکستان کی وہاڑی میں دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ حکومت شجر کاری میں مصروف ہے، جبکہ دوسری طرف پہلے سے موجود درختوں کو صفایا ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار میں آتے ہی گرین اینڈ کلین پاکستان کا نعرہ دیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ پورے ملک میں درخت لگائے جائیں گے تاکہ ملک سے آلودگی کا خاتمہ ہو۔ اس سلسلہ میں اگر ایک طرف سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر پودے اور درخت لگائے جا رہے ہیں تو دوسری طرف روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں درختوں کا قتل عام بھی کیا جا رہا ہے۔ محکمہ جنگلات اور دیگر محکموں کی مبینہ ملی بھگت کے ساتھ رات کی تاریکی میں کاٹے جانے والے شیشم، کیکر اور سنبل اور دیگر قیمتی درخت سورج نکلنے سے پہلے ہی ٹریکٹر ٹرالیوں پر لوڈ کر کے وہاڑی کے خانیوال چوک میں لا کر فروخت کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کلین اینڈ گرین پاکستان مہم ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس وقت نہروں پر اجاؤ اور سڑکوں کے کناروں سے درخت غائب ہو چکے ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما انصاف ویلفیئر ونگ ضلع شیخوپورہ کے صدر ڈاکٹر اسلم خان شیروانی، ضلعی جنرل سیکرٹری چودھری خرم ریاض کہلو اور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور ضلعی انفارمیشن سیکرٹری حماد خان ترین نے اسسٹنٹ کمشنر شیخوپورہ جمیل احمد کو عوامی مسائل کے حوالے سے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کروایا اور اس موقع پر انصاف ویلفیئر ونگ ضلع تحصیل شیخوپورہ کی ٹیم بھی ان کے ہمراہ تھی، جن میں ضلعی فائنانس سیکرٹری محمد احسان مرزا، ضلعی جوائنٹ سیکرٹری محمد اکرم چیمہ اور تحصیل جنرل سیکرٹری شیخوپورہ زبیر خان اور وحید گجر اور دیگر موجود تھے۔ عوامی مسائل کو حل کروانے کے لیے تفصیلی جائزہ لیا گیا، جس پر اسسٹنٹ کمشنر شیخوپورہ جمیل احمد نے انصاف ویلفیئر ونگ کی ٹیم کو عوامی مسائل کی نشاندہی کرنے پر شکریہ ادا کیا اور تمام مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کو جاری کیا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ ہم بھینسوں اور آوارہ جانوروں کے لیے سرکاری جگہ بنا رہے ہیں، جن کو ہم پکڑ کر وہاں بند کیا کریں گے اور پارکوں کی پلانٹیشن اور پلے گراؤنڈ کا کام بھی جلد از جلد حل کروائیں گے۔ موجودہ حکومت عوام کو بنیادی سہولیات دینے میں ناکام، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی خصوصی مہم خدمت آپ کی دہلیز پر بھی عوام کو کوئی فائدہ نہ دے سکی۔ شیخوپورہ میں آج بھی ترقی کے اس دور میں
پیچھے ہیں، جہاں کی سڑکوں پر سفر کرنا آج بھی کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ ایسی ہی ایک سڑک جو حافظ آباد کو شیخوپورہ سے ملاتی ہے، اس سڑک کی کیا حالت ہے اور اس کی کیا تاریخی اہمیت ہے، جانتے ہیں آصف راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ اب تالاب کی شکل اختیار کر گئے ہیں، بنے ہوئے ہیں، جس سے ٹریفک اور خصوصاً پیدل چلنے والوں کو بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسکول کے اوقات میں سڑک پر واقع گرلز اور بوائز اسکولز میں بچوں کو آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ سڑک آپ دیکھ لیں، یہ تو بہت کم ہے، یہ جو پانی نظر آ رہا ہے نا آپ کو، آپ پیچھے جائیں اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہماری یہاں گاڑیاں موٹر سائیکل اتنا ڈسٹرب ہوتا ہوں آتے جاتے کہ آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ میری کمر کی درد جو نکل گئی اس سڑک کی وجہ سے، اور روز آئے ہم ادھر حادثات دیکھتے ہیں، اسٹوڈنٹ پریشان ہے، کوئی مسافر آ جاتا ہے، کوئی جنازے کا مسئلہ ہو، بہت زیادہ اتنے مسائل ادھر ہوتے ہیں کہ آپ ادھر آ جائیں نا، آپ کو ہم گنوائیں آپ گن نہیں سکتے۔ کوئی گاڑی والا ہے، کوئی رکشے والا ہے، کوئی موٹر سائیکل والا ہے، اسٹوڈنٹ حضرات ہے، وہ بہت سب سے زیادہ پریشان۔ سب سے زیادہ ہم اس وقت پریشان ہوتے ہیں جب ہمارا جنازہ یا کوئی بارات آتی ہے، ٹھیک ہے، گیدرنگ ہوتی ہے، ہمارے گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی، نماز کے لیے جاتے ہیں، کپڑے پلیت ہو جاتے ہیں، بہت سے مسئلے ہیں۔ لیکن کسی انسان کو، کسی حکمران کو یہاں پوزیشن میں بھی رہے ہیں اور حکومت میں بھی ہیں، لیکن ہمارا کوئی پرسان حال ابھی تک نہیں آیا۔ ہم نے تو ادھر نہیں دیکھا، 3-4 سال مجھے بھی ہو گئے ادھر تو ਵੇਖਣ ਡਏ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਜੀ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜੀ, ਆ ਸੜਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 4 ਦਿਨ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਇਹ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਉਹ ਕਰਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਆ। کوئی کبھی وہ کام بالا سے کبھی آپ نے کوئی اپیل کی ہو کہ ہماری یہ سڑک بنائی جائے؟ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਲਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਕਲਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ नहीं है। ਸਾਨੂੰ बड़े तकरीबन 20-21 साल हो गए हैं इस सड़क को बने हुए, कोई उसके बाद रिपेयरिंग नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं कि जो इसे दोबारा रिपेयर करके, और बनाने के बाद तो बोला है रिपेयर भी नहीं हुई। हमारा कोई ऐसा मामला नहीं है कि जो MP MN हमारी बात सुने। ये हालात देख लें आप, यहाँ से दुश्वारी होती है, जनाजा गुजरे ता दुश्वारी इसलिए होती है कि कोई यहाँ से गाड़ी गुजरे वो भी गुजरने के काबिल नहीं है। 20-21 साल हो गए इस चीज़ को। कैमरा टीम के हमरा आसिफ महमूद राजपूत, रायल तेज, अजरियांवाला, शेखुपुरा। खबर शामिल करते हैं मुस्तफ़ाबाद से। मुस्तफ़ाबाद में हज़रत अब्दुल्ला शाह बुखारी अल मारूफ हज़रत बाबा मिट्ठू शाह वली सरकार के कब्रिस्तान में 4 दीवारी और टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से जानवर कब्रों का तकद्दुस पामाल करने लगे और बारिशों का पानी जमा होने की वजह से कब्रें में टूट फूट का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ मलिक के। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्तफ़ाबाद हज़रत अब्दुल्ला शाह बुखारी अल मरूफ बाबा मिट्ठू शाह वली सरकार के कब्रिस्तान में, जहाँ पर 4 दीवारी बहुत ही नाकस है और जिस वजह से कब्रिस्तान में जानवरों की बीमार रहती है और सैलाबी पानी की वजह से कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा कब्रें टूट फूट का शिकार हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम हज़रत बाबा मिट्ठू शाह रहमतुल्लाह अलैह आपके कब्रिस्तान में हाजिर हैं। चंद दिन से बारिशों का सिलसिला जारी है। मुस्तफ़ाबाद हज़रत बाबा मिट्ठू शाह रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है और 4 दीवारी भी नाकिस है। हमारी इंतज़ामिया से अपील है कि कब्रिस्तान से पानी भी निकलवाया जाए और मिट्टी भी डलवाई जाए और 4 दीवारी का काम भी मुकम्मल करवाया जाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुन का कहना है कि हमारी अहले इलाका और इंतज़ामिया से अपील है कि कब्रिस्तान से पानी भी निकलवाया जाए और मिट्टी भी डलवाई जाए। बहावल नगर में एक्सियन बल्दिया चौधरी जफर शहरियों के बुनियादी हकूक़ के हल के लिए मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। एक्सियन बल्दिया चौधरी जफर की सरबराही में शहर में अरसा दराज के बाद सफाई सुथराई के मसाइल हल होना शुरू हो गए। चौधरी जफर की तैनाती के बाद शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। तफसीलात के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कूड़ा, क्रिकेट और सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम था। इलाका मुकीन अपने मसाइल के हल के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर बल्दिया ऑफिस के चक्कर लगाने पर मजबूर थे। शहरियों के मसाइल के बारे में कोई सुनने को तैयार नहीं था। इस सिलसिले में एक्सियन चौधरी जफर ने ख़ुसूसी इंतज़ामात करते हुए शहरियों के मसाइल को हल करने में भरपूर किरदार अदा किया है।
एक्सीएन बल्दिया चौधरी जफर ने शहर की सफाई सुथराई की बदतर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए एक शिकायत सेल भी तश्कील दिया, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर शहरियों की शिकायत का अजाला किया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत शजरकारी का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मुसव्विर अहमद खान न्याजी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना बिलाल इफ्तिखार ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत डीसी पार्क में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की गई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के विजन के मुताबिक साफ, सरसब्ज और महफूज पाकिस्तान मुहिम के तहत ज़िला भर में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इस सिलसिला में ज़िला इंतज़ामिया तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ मुश्तरका ताउन को यकीनी बनाएगी। उनका मजीद कहना था कि तमाम शहरी माहौल को साफ और खुशगवार बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की इस शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें, क्योंकि दरख्त लगाना सदकाए जारिया है। इस मौका पर चीफ ऑफिसर साजिद मुशर्रफ, ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान और मुलाजमीन, अंजमन ताजरान और मीडिया और सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद थे। दरीसना DPO बिलाल इफ्तिखार ने टीम सरेआम के मुश्तरका ताउन से DPO ऑफिस में भी पौधा लगाया और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की गई। चनियोट में DPO बिलाल जफर, DC सैयद मसूद नोमान, पार्क आर्मी के मेजर हबीब की अहले तशी के वफ्द से मुलाकात हुई। मीटिंग में अमन अमान की सूरत हाल और मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में तबादला ख्याल किया गया। अफसरान ने शुरा के अमन अमान और बरकरार रखने और मुहर्रम उल हराम के हवाले से मसाइल सुने। मुहर्रम उल हराम में तमाम वसाइल बरोए कार लाकर फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। किसी को भी शहर का अमन तबाह करने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। लियाकतपुर में महकमा ज़राअत पंजाब के तहत हालिया मानसून की बारिशों के पेश नज़र कपास के काश्तकारों के लिए खसूसी एडवाइजरी जारी कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक एडवाइजरी में कपास के काश्तकारों से कहा गया है कि वो फसल से बारिश के पानी की निकासी के लिए खाली खेतों के अलावा कमाद, धान और चारा जात की फसलात का इंतखाब करें या किसी नशेबी खेत में पानी निकाल दें। महकमा ज़राअत की फील्ड फार्म मशीन्स हाई अलर्ट हैं और एडवाइजरी के मुताबिक कपास के काश्तकारों की फ़नी रहनुमाई कर रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिपोर्टर रहीम यार खान मोहम्मद आकिब अनवर की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की चौथी लहर, अंजमन आड़तियाँ सब्जी मंडी कोरोना से बचाव की आगाही में इंतज़ामिया के शाना बशाना है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ सद सब्जी मंडी सादिक आबाद सैयद सफ्तर अली और दीगर अहदेदारान ने बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर करीम यूसुफ और चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी आमिर तकी की हिदायत पर सब्जी मंडी सादिकाबाद में कोरोना वैक्सीन लगवाने के हवाले से एक कैंपेन शुरू कर दी गई है और सब्जी मंडी के अहदेदारान और डॉक्टर मोहम्मद आमिर, हाजी मोहम्मद रमज़ान जानी और मियाँ मोहम्मद अमजद, मोहम्मद शफीक चौहान और राना मोहम्मद अदनान, मलिक अता मोहम्मद शाद की क़यादत में टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो सब्जी मंडी के आड़तियों प्लेदारों को कोरोना वैक्सीन लगवाकर अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाने पर कायल करेगी और साथ साथ आगाही देंगी कि वो बर वक्त वैक्सीन लगवाकर और एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए खुद को और अपने घर वालों को महफूज कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिपोर्टर रहीम यार खान मोहम्मद आकिब अनवर ने बताया कि सादिकाबाद में दावत इस्लामी के तहत पौधे लगाने का सिलसिला जारी है। इस मुहिम के सिलसिले में 171 पी में आज 100 पौधे लगाए गए। इन ख्यालात का इजहार दावत इस्लामी के जोन निगरान हाजी शफीक अतारी, मोहसिन अतारी, मोहम्मद नईम कादरी, हाजी मोहम्मद असगर कादरी, मोहम्मद फारूक राशिद आफरीदी और मोहम्मद काशिफ ने पौधे लगाने के दौरान किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि दावत इस्लामी के तहत शोबा अगस्त में 26 लाख पौधे लगाने का हदफ है। इसी सिलसिले में सादिकाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ संजरपुर में 100 से ज़ायद पौधे लगाए गए और आज चक नंबर 171 पी में भी पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ पौधे लगाना ही नहीं बल्कि उनकी निगहदाश्त करना भी है। उन्होंने तनावर दरख्त बनाना और अज़्म है कि इंशाअल्लाह अपना टारगेट पूरा करते हुए पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और आइंदा नस्लों को एक खुशगवार माहौल फराहम करेंगे।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुख करेंगे लाहौर का, जहां पर थाना निश्तर कॉलोनी चौकी में सब्जी मंडी के इंचार्ज राशिद भंगू की सरपरस्ती में कब्जा ग्रुप सरगर्म। मुबैना कब्जा ग्रुप ने फिरोजपुर रोड ग्रीन कैंप हाउसिंग सोसाइटी की सड़क पर कब्जा कर लिया। अहले इलाका की जानिब से 15 पर कॉल की गई तो चौकी इंचार्ज ने कॉल करने वाले राव साजिद को चौकी सब्जी मंडी के हवालात में कई घंटों तक बंद रखा। अहले इलाका को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और अहले इलाका ने कब्जा ग्रुप और चौकी इंचार्ज के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि कब्जा वागुजार करवाकर चौकी इंचार्ज के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हवेली लखा से हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर रॉयल तेज वकास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा और गिरदोनवा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। कोई भी दुकानदार सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फल, सब्जियां और अंडे वगैरह फरोख्त करने को तैयार ही नहीं है। दुकानदारों ने हुकूमती रेट लिस्ट की धज्जियां बिखेर दी। गैर मयारी फल और सब्जियों का भी 1 नंबर का रेट ले रहे थे। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर डिप्टी कमिश्नर उगाड़ा और असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर आसिफ अली के अहकाम पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ऐश बहादुर ने म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर बल्दिया इनामुल्ला, एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर वकार अहमद, रफीक अहमद वट्टू और चौकी इंचार्ज जफर मुहार के हमरा अचानक छापे मारकर रेट लिस्ट आवीज़ा न करने और नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मौका पर ही भारी जुर्माने किए और जुर्माना जमा न करवाने वालों को हवालात भेज दिया गया। हैदराबाद में नसीम नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुंशियात सप्लायर्स भारी मिकदार में शराब बोतलों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख की खसूसी हिदायत की रोशनी में नसीम नगर पुलिस की मुंशियात फरोशों और दीगर जराइम पेश अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इंचार्ज नसीम नगर इंस्पेक्टर ज़ियाद अली नोनारी की अपने स्टाफ के हमरा कामयाब कार्रवाई के दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए नसीम नगर चौक के करीब से बदनामी ज़माना मुंशियात सप्लायर्स रमेश कुमार और विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुंशियात सप्लायर्स के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 28 इंग्लिश बोतलें, 35 पाकिस्तानी बियर और 39 इंग्लिश बियर और 96 पाकिस्तानी वाइन बोतलें शराब बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुंशियात सप्लायर्स के खिलाफ हदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हैदराबाद में सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए ज़िला इंतज़ामिया हैदराबाद की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफार सोमरू की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद फातिमा साइमा अहमद ने तालका लतीफ़ाबाद में कायम मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ का अचानक दौरा किया। SOPs पर अमल दरामद न करने पर इंडस्ट्री कराची ट्रेडर्स और पेप्सी डेपो को ताहुक्म सानी सील करके लाखों रुपए के जुर्माने भी आयद किए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद फातिमा साइमा अहमद का कहना था कि ताजर हजरात SOPs पर अमल दरामद को हर सूरत में यकीनी बनाए, बसूरत दीगर इंतजामिया की जानिब से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफार सोमरू की हिदायत पर तालका लतीफ़ाबाद में जारी पोलियो मुहिम का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद फातिमा साइमा अहमद ने तालका लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और वहां मौजूद पोलियो टीमों के साथ जाकर घर घर बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए। जबकि इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद ने पोलियो टीम के हमरा वैक्सीनेशन कार्ड भी चेक किए। खबर शामिल करते हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। हमारे नुमाइंदे कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फराबाद में 9 मुंतखब अराकीन की हलफ की कार्रवाइयाँ शुरू हैं। सेक्रेटरी असम्बली बशारत हुसैन 9 मुंतखब मेंबरान की कामयाबी का नोटिफिकेशन पढ़ रही हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार स्पीकर के लिए फैसल मुमताज़ राठौर और डिप्टी स्पीकर के लिए निसार अब्बास नामजद हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास शुरू और जिसमें 9 मुंतखब मेंबरान असम्बली ने हलफ उठा लिया। मुजफ्फराबाद में हलफ उठाने वालों में 6 खवातीन भी शामिल हैं। स्पीकर शाह गुलाम कादिर ने 9 मुंतखब अराकीन से हलफ लिया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक अहमद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जावेद इकबाल हलफ ना उठा सके। टोबाटेक्सिंग में तादाद के लिहाज से पंजाब के सबसे बड़े प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट प्राइमरी गर्ल्स जदीद स्कूल में 10 कमरों पर मुश्तमिल नए ब्लॉक का संग बुनियाद रख दिया गया। टोबाटेक्सिंग में गवर्नमेंट प्राइमरी गर्ल्स जदीद स्कूल की संग बुनियाद रख दी गई। इस स्कूल में पहली से लेकर 5वीं तक बच्चों की तादाद
1675 है और 33 सेक्शन है। 45 टीचर्स अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। इस सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खसूसी PTI के मरकजी नायब सदर चौधरी इशफाक, MPA सईद अहमद सईदी और डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, असिस्टेंट कमिश्नर जहीर शाकिर और मीडिया नुमाइंदगान मियाँ जाहिद, मियाँ फैसल और हाफिज शाहिद भी मौजूद थे। बच्चों की जानिब से पेश किए गए टैबलो ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मेहर में साबिका चीफ मिनिस्टर लियाकत अली खान जतोई की कराची में राजा हाउस आमद। लियाकत अली खान जतोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह और हुरों के रूहानी पेशवा पीर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी पीर साहब पगाड़ा और सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी से उनकी वालिदा मोहतरमा के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौका पर डॉक्टर गोबन परवानी और दीगर रहनुमा भी उनके साथ मौजूद थे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर खड़ी शरीफ से हमारे नुमाइंदे कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक खड़ी शरीफ चिचियाला बाला मोड़ के करीब अवाम का एहतजाज। तकरीबन 9-10 दिन से बिजली बंद है। पहले ट्रांसफार्मर ख़राब था और फिर कुछ बिजली की तार की वजह से मसला पैदा हुआ। अवाम इलाके पर जोर एहतजाज, मुतालबात है कि बिजली की बहाली तक रोड नहीं खोलेंगे। शेखुपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 137 की सीनियर नायब सदर और साबिक मेंबर जिला कौंसिल हाजी तारिक महमूद ने कहा कि कश्मीर डोगर के इंतखाबात में होने वाली धांधली की साजिश के ताने बाने खुलते जा रहे हैं। इलेक्शन को सिलेक्शन में तब्दील करने की साजिश में जो अनासिर शामिल हैं वो कौम के सामने हैं और बेनकाब हो रहे हैं। बार बार जमहूरियत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं जो काबिले कबूल नहीं। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा इक़्तिदार की सियासत की है। मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में अवाम की खिदमत और मुल्की तरक्की को ओढ़ना बिछौना बनाए रखा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने बयान में अपने हर दौर में इक़्तिदार में अवाम की फलाह बहबूद और मुल्की तामीर तरक्की के शानदार रिकॉर्ड कायम किए और मुल्क में तरक्याती मंसूबों के जाल बिछाए और सब्र तहम्मुल बर्दाश्त और हिम्मत से इन तरक्याती मंसूबों को जारी रखा जो BTI के बस की बात नहीं। यही वजह है कि आज भी मुल्क की अवाम नवाज लीग की क़यादत के साथ खड़ी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में इलेक्शन का ढोंग रचाकर सिलेक्शन की गई है। धांधली के जरिए हुकूमती जमात के उम्मीदवारों को जितवाया गया। अवामी मैंडेट चोरी करने वाले कौमी मुजरिम हैं और PTI का मैंडेट जाली है। मलिक फजल अकबर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक जहां मियाँ चन्नू में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया, वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान नदीम की ज़ेर सदारत अवामी खिदमत कचहरी शुरू हो चुकी है। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का तमाम अमला एक जगह मौजूद है। अवाम सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक अपने रेवेन्यू से मुतल्लिका मसाइल हल करवा सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक अवाम रेवेन्यू खिदमत कचहरी में आते वक्त कोरोना SOPs का ख़ासूसी तौर पर ख्याल रखें। बिहाड़ी से आपको अपडेट करते चलें, जहां पर हमारे तहसील रिपोर्टर बशीर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बिहाड़ी पंजाब में फूड अथॉरिटी, कॉलोनी चौक, बिहाड़ी बुरेवाला और मेलसी में छापे मारे गए। बिहाड़ी में स्नैक्स यूनिट और स्वीट्स एंड बेकर्स की चेकिंग की गई और नाकिस इंतजामात पर भारी जुर्माने आयद किए गए। पाकपतन से मोहम्मद खालिक की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा गैम्बर रोड पाकपतन में 3 अजला साहिवाल पाकपतन और काड़ा को मिलाने वाला पुल खस्ता हाली का शिकार है। पुल जमाल कोट और पुल सिख बयास पर हिफाजती जंगला न होने की वजह से आए रोज़ हादसात हो रहे हैं, जिससे कीमती जानों का ज़या है। अहल इलाका का अरबाब इख्तियार से फौरी पुल तामीर करने का मुतालबा है। चनियोट में DPO बिलाल जफ़र की ज़ेर सदारत ताज़िया लाइसेंस दारान चनियोट सिटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में अमन व अमान बरकरार रखने के हवाले से इक़दामात तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। मुहर्रम अल हराम में मजालिस जुलूसों ताज़िया जुलूसों पर 3 लेयर सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। DPO बिलाल जफ़र का कहना है कि मैं खुद रूट्स हसास पॉइंट्स का विज़िट करके सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लूँगा और मुंतज़मीन को कोरोना SOPs पर अमल दरामद मुकर्ररा रूट्स वक्त की पाबंदी यकीनी बनाएं। मुहर्रम अल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे।
लकी मरवत में सरकारी सतह पर मानसून शजरकारी का इफ्तिताह कर दिया गया। मुहिम का मकसद पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाना है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत अनवर शेरानी ने पौधा लगाकर प्लांट फॉर पाकिस्तान मानसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर DFO बनो डिवीजन वहदत ज़िशान, SDFO नकीबुल्ला और पब्लिक हेल्थ के मिकाइल, TMO गजनी खेल अताउल्ला, TMO लकी यूसुफ खान और 1122 रेस्क्यू जफरुल्लाह खान सदर, इरफान उल्लाह सदर और हाजी अनवर कमाल डायरेक्टर ज़राअत सोशल वेलफेयर हुकाम और महकमा तालीम के अफसरान समेत अमायदीन इलाका और स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत अनवर शेरानी ने खिताब करते हुए कहा कि आज ज़िला लकी मरवत में बाकायदा तौर पर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह हो चुका है और तकरीबन 40,000 पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ज़िला लकी मरवत के मुख्तलिफ मकामात पर लाखों पौधे लगाए जाएंगे। इस मुहिम में आवाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। कम्युनिटी रेजिडेंस एक्टिविटी नॉर्थ के ताउन से 5 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें नॉर्थ वजीरिस्तान के 10 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। मजीद तफसील शाहिद खान आफरीदी की इस रिपोर्ट में। जवान नस्ल से वाबस्ता उम्मीद तभी पूरे होंगे जब वो अपनी पूरी तवानाई मुल्की और अपने इलाके की तरक्की के लिए सर्फ करे। ये बातें कम्युनिटी रिजिलियंस नॉर्थ के ताउन से पेशावर यूनिवर्सिटी में साबिका फाटा के तलबा के लिए यूथ एम्पावरमेंट के मौजू पर 5 रोज़ा वर्कशॉप के मौके पर कही। सबसे पहले तो जो यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन जो है जिसका आज आगाज़ हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है हर तरीके से। अगर हम जिस भी आस्पेक्ट से देखें स्पेशली वुमेन के लिए, क्योंकि सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पर्टिकुलरली लीडरशिप में वुमेन को जो है तो अगर हमें आगे आना है तो उसके लिए ये ट्रेनिंग्स बिल्कुल बेस होती हैं, बिकॉज़ ये हमें ट्रेन करती है। और एग्जैक्टली यही चीज़ हमने यहाँ पर सीखी भी कि किस तरीके से हमने इस अवेयरनेस को अपने साथ लेके चलना है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स और अपने अपने एरियाज़ में। ट्रेनिंग के सेशन में नॉर्थ वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 10 तलबा और 10 तालिबात ने शिरकत की। सेशन के आखिरी रोज़ मेहमान खुसूसी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट दिलनवाज खान ने नौजवानों को अल्लामा इकबाल के अफकार पर चलकर कामयाबी हल कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में ये बहुत ही अहम है, क्योंकि वहाँ पे जो मर्द हजरात है वो तो ज़ाहिर है बाज़ारों में पेशावर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाते हैं, वहाँ पे उनको तो उनकी थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाती है। लेकिन जो ख़वातीन हैं जो घरों में रहती हैं, जो क्योंकि एक्स फाटा में अक्सर जो है ख़वातीन जो है उनकी तालीम इतनी नहीं है, वो हाउस वाइफ के तौर पर काम करती हैं। तो फिर ये जो ख़वातीन जो लड़कियाँ यहाँ पे उनकी जो अवेयरनेस हो जाती है उनको, तो वो चली जाती है अपने इलाकों में, वहाँ पे फिर वो जाके घर घर जाके वहाँ पे जो ख़वातीन है उसमें अवेयरनेस ये पैदा कर सकती है। इस तरह के ट्रेनिंग से साबिका फाटा के नौजवानों के ज़िंदगी पर मुस्बित असरात मुरतब होंगे। कैमरामैन उज़ैर के साथ शाहिद खान अफरीदी, रॉयल टीवी। लकी मरवत में पुलिस गर्दी के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। लकी मरवत में मुबैना पुलिस गर्दी के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाज किया है और मियाँ वाली रोड को बंद करके धरना दे दिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस गर्दी का वाक़या लकी मरवत के इलाका दौलत खेल में पेश आया, जिसमें अहले इलाका ने मुश्तिल होकर एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन में बुरकापोश ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मुतासरा खातून के मुताबिक रात को वो अपनी 2 बेटियों और छोटे बच्चों के साथ सो रही थी कि पुलिस वाले घर की दीवारें फैलाकर घर में डाकुओं की तरह दाखिल हो गए और मेरे बेटे को उठाकर ले जाना चाहते थे। पुलिस ने ख़वातीन को भी ज़दोकोब किया और बेइज्जत किया और घर से सोना, नकदी और दीगर कीमती सामान उठाकर ले गई। मुजाहिरीन से DSP और असिस्टेंट कमिश्नर ने मुज़ाकरात किए, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि जब तक DPO खुद नहीं आते उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल नॉर्थ नाज़माबाद में जामे मस्जिद उम्मुल मनीन अम्मा आयशा का दौरा किया, जिसमें सियासी और समाजी वर्कर दानिश रहमानी ने पार्टी सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का इस्तकबाल किया। शेख इब्राहिम जूनागढ़ी और शेख अब्दुल हनान सामरवर्दी और शेख जुनैद ज़की, शेख मुजम्मिल लोधी और समेत मुअज़्ज़ज़ीन ने महफिल में मुलाकात की। मुस्तफ़ा कमाल का फ़र्दन तमाम हाज़रीन महफिल से हाल अहवाल और पार्टी की मुस्तकबिल की प्लानिंग पर तफसीली तौर पर बातचीत हुई। पाक सरजमीन पार्टी ही शहर को एक बार फिर रोशनियों से मुनव्वर करेगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कोटा सिस्टम ख़त्म करके नारे लगाने वाले अपनी साख बचाने में मसरूफ़ हैं।
पाक सरजमीन ने ही कराची समेत अंदरून सिंध में भी क्रॉस रोड पर काम मुकम्मल कर रखा है। यकीनन शहर के लोगों को मेरी मेहनत और शहर की तरक्की याद होगी। हम फिर से शहर को नया रुख देंगे। हमारा एक होने से बेहतर है कि हम नेक हों, नीयत साफ हो, मंजिल आसान हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोट से आपको आगाह करें, जहां पर सिंध के ज़िला कंबर में नवाही इलाके गोट बोहड़ में ज़राई पानी की तकसीम के मामले पर बोहड़ और चांडिया बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादम हुआ और फायरिंग के नतीजे में बाप बेटे समेत 3 अफराद कत्ल हो गए, जबकि 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। कंबर के करीब नवाही इलाके गोट बोहड़ में चांडिया और बोहड़ बरादरी में ज़राई ज़मीन पर पानी की तकसीम के मामले पर फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में फ़िदा हुसैन, इब्राहिम और अली चांडियो शामिल हैं। इलाके के MPA बरहान खान और चांडियो वाक़े की जगह पर पहुंचे और गोट के मुअज़्ज़िज़ीन से मिले और फायरिंग का सिलसिला बंद करवाया। बादशाह पुलिस मक़तूलीन को कंबर अस्पताल जबकि ज़ख्मियों को लाड़काना अस्पताल मुंतकिल किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल तेज़।